अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेक्शन 1.2 या यूनिट 1.2 स्टार्ट करेंगे। We will study here the four types of firms. What are the four types of the firms? So the learning objective for this is we need to understand the important features of the four types of the firms, and also here we will see why the corporate form of the business is more advantageous as it dominate the economic activity. We will see some graph for this also, why it is dominating the economic activity. So let's start. The four types you might already have studied in accounting course, basic accounting course, that there are four types of firms. First of all is a sole proprietorship, second one is a partnership, and the third one is a limited liability company, and fourth one is a corporation. We'll see in the coming slides each one with detail. The sole proprietorship is straightforward, and many new businesses use this organizational form. You have only one owner in this. Sole proprietorship means if you want to start a business and you are investing your money to start that business and you will register that business, that is called a sole proprietorship. So principal limitation is that there is no separation between the firm and the owner. Means your business and you, there's no difference. Why we say like this? Because if you have to pay from your business, if you take some loan on the name of your business and later on your business may go bankrupt, so your personal property is also at stake. Means there's no difference, there's no separation. So the firm can have only one owner in this type of business. So what are the other features of the sole proprietorship? The owner has unlimited personal liability, same as I have told you. Means if the business fails, his personal property is also at stake. He has to pay his debts whatsoever is the case. So the owner has unlimited personal liability for the firm's debt. The life of the sole proprietorship is limited to the life of the owners. Say for example, God forbid, that if the owner dies, means the business will finish. Now the new owner will come and the new business will come. So it is directly proportional, you can say it's directly dependent on the life of the owner. And it is difficult to transfer ownership of a sole proprietorship. So ownership, because there is only single owner, you cannot transfer the ownership of the single business to any other individual. So now is the second type of the firm is the partnership. In partnership you have more than one owner, while in sole proprietorship you have only one owner. And here all partners are liable for the firm's debt. So the same things goes on every partner who is basically the owner. Also you can say the owner. So a lender can require any partner to repay all the firm's outstanding debts. Means if your business have owed something, they have to pay something to their supplier or their lenders. So any lender may ask for any partner to pay the debt because he is also liable to pay that. The partnership ends on the death or withdrawal of any single partner. So if one partner withdraws due to any reason or due to death, then the partnership ends. Then there is a new partnership unless there is some clauses placed in the agreement of the partnership. So partners can avoid liquidation. Liquidation means you convert all the business into cash to settle all the claims on the business. So partners can avoid liquidation if the partnership agreement provides for alternatives such as buyout of a deceased or withdrawn partner. So if it is already written in the partnership deed, which is partnership agreement, in case of withdrawal of any partner, the other partners may buy the part or the portion that that partner has who is withdrawing or who is deceased, or means who has expired or he died. Okay. So some of the features of the partnership are a limited partnership. A limited partnership is a partnership with two kinds of owners.
So basically the partnership is also called the limited partnership, and it has two kinds of owner. One is the general partners, and other one is the limited partners. What are the general partners and what are the limited partners? General partners basically have the same rights and privileges as partners in any general partnership. Means they have whatever their proportion in the equity, they have the rights for that part. Suppose a partner has say for example 20% or 30% share in the equity, so he has the right of 30%. So, and these partners are personally liable for the firm's debt obligations, as we have studied before. So what are the limited partners? So limited partners is something new, have limited liability, and their ownership interest is transferable. It is basically, हम वो कहते हैं ना कि sleeping partner. Sleeping partner means, sleeping partner कौन होते हैं? Inactive partner, जिन्होंने आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट तो किया होता है लेकिन उनके कोई राइट्स नहीं होते, ठीक है, और ना ही उनकी कोई अथॉरिटी होती है, तो उनकी जो पार्ट है इफ समबडी एल्स विल टेक, तो वो उसको दे देते हैं. व्हाट दे डू, दे पुट द मनी एंड दे टेक द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. So they have no management authority, while the general partners they have. Okay. So the third type of firm is limited liability companies, also called LLC. Here no general partner. All the owners have limited liability. Means it is registered with the government or something, and it has limited liability to the equity of the business. But they can also run the business. Means at the same time, whoever takes the share in the company or have a stake in the equity, so they also can run the business. The owners are also, you can say, the managers or chief executive officer or chief operating officers or whatever you can say. So these are called limited liability companies. These are very common in West and in Gulf and in Americas. So the fourth type of the business is the corporation. The only difference what I want to draw, we will see in the next slides, there is comparison. So what is the corporation? We will go on to the fourth type of the business, that is called corporation. A corporation is legally defined. It is a legal being. मतलब इसकी लीगल, इट्स अ लीगल एंटिटी. अगर कुछ बिजनेस ने कुछ गलत किया है तो यू कैन गो इन द लॉ सूट, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं कोर्ट में जाके बिजनेस के खिलाफ, नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल. इट्स सेम लाइक एन इंडिविजुअल, hypothetical individual you can say. There is no person, but it is like a person जो business होता है. So it is legally defined. Artificial being means hypothetical, artificial being separate from its owners. तो business separate है, owners separate हो गए, ठीक है. Business और owners separate हो गया. It has many of the legal powers that people have. जो नॉर्मली लोगों को राइट्स होते हैं वही बिजनेस को भी राइट्स होते हैं. तो ये आर्टिफिशियल बीइंग हो गया, ठीक है. इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, ओनर्स नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहा है. और आल्सो यू कैन एक्वायर एसेट्स, आप एसेट्स ले सकते हैं. इनकर ऑब्लिगेशंस भी हो सकती हैं, यानी यू कैन टेक द लोन्स और यू कैन रेज द फंड्स थ्रू डेट. और एंड इट एंजॉयज प्रोटेक्शन अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द सीजर ऑफ इट्स प्रॉपर्टी. सीजर क्या होता है? वो कहते हैं ना भाग के सरकार जब्त कर ले प्रॉपर्टी. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएस का है वो सेव करता है. इन द सेम वे पाकिस्तान के अंदर भी जो कॉरपोरेशंस हैं उनको भी कानून जो है वो उनको सिक्योरिटी फ्रॉम करता है कि आप सीज नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, ठीक है. तो बहुत सारे राइट्स आपको मिल जाते हैं. So we'll see some of the characteristics of the corporation. A corporation is solely responsible for its own obligation. यानी जो business है वो खुद responsible है, owners responsible नहीं है. The owners of corporation are not liable for any obligations the corporation enters into. तो जो owners होंगे
वो कितने लायबल होंगे, जितना उनका स्टेक होगा उसके अंदर में, जितनी उनके पैसे होंगे, जितनी उनकी इक्विटी होगी, या इन अदर वर्ड जितने उनके शेयर्स होंगे, जितने उनके पास स्टॉक होंगे उस कंपनी के, ठीक है। द कॉर्पोरेशन इज नॉट लिएबल फॉर एनी पर्सनल ऑब्लिगेशंस ऑफ इट्स ओनर्स, ठीक है। और सिमिलरली अगर एक पर्सन का कोई एक जो ओनर है उसका कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन है, उसकी जिम्मेदार वो कॉर्पोरेशन नहीं होगी जिसमें उसने इन्वेस्ट किया हुआ होगा, ठीक है। बोथ वेज, ना तो कॉर्पोरेशन ने जो देना है उसका जो ओनर है जिसने उसमें पैसे लगाए हैं वो जिम्मेदार है, ना ही ओनर ने जो देना है उसकी वो बिजनेस जिम्मेदार है, जो जिसको हम कॉर्पोरेशन कह रहे हैं, ठीक। तो कॉर्पोरेशन बनाना जो है इस बिट मिस कम्बरसम, जो इस कॉम्प्लिकेटेड, जो बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं, लेकिन इसमें लीगली बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन क्या होती है, मस्ट बी लीगली फॉर्म, यानी उसको लीगल रिकग्निशन इज मस्ट बी चार्टर्ड इन द स्टेट। अब हम अगर पाकिस्तान की बात करें या यूएस की बात कर रहे हैं, वहाँ स्टेट्स हैं, यहाँ प्रोविंस हैं, तो उस प्रोविंस के अंदर उसको पास उसका चार्टर्ड होगा, मींस वो रजिस्टर्ड होगी वहाँ पे, इन विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए यू हैव सर्टन गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो रेगुलेट भी करती हैं और रजिस्टर भी करती हैं। कॉर्पोरेट चार्टर जो है मींस उसको चार्टर मिल गया, मींस उसका नाम आ गया उसके कॉर्पोरेशन की लिस्ट के अंदर। कॉर्पोरेट चार्टर स्पेसिफाइज द इनिशियल रूल्स दैट गवर्न हाउ द कॉर्पोरेशन इज रन। तो इसमें सारी चीज़ें वो इसकी लिखी हुई होती हैं। एक प्रोस्पेक्टस छापते हैं वो, उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं, जिसमें वो सारे इनिशियल रूल्स लिखे होते हैं कि इस कॉर्पोरेशन को चलाया कैसे जाएगा। राइट जी, सॉरी अगली स्लाइड पे चला गया था। मोर कॉस्टली देन सेटिंग अप अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसमें कॉस्ट कुछ ज़्यादा होती है, इसके कुछ इसमें बहुत सारी जो लीगल फीसेस और बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो इट्स कॉस्टली टू सेटअप अ कॉर्पोरेशन। ओके जी, वी कैरी ऑन। ओनरशिप ऑफ अ कॉर्पोरेशन, नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ओनर्स। मतलब पार्टनरशिप में भी आप कहेंगे ना कि कितने पार्टनर्स हैं, तो कॉर्पोरेशन में कितने ओनर्स होंगे, नो लिमिट, कैन बी मिलियंस और कैन बी थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस। सो द एंटायर, कोई लिमिट नहीं है, जिसने उसका शेयर लिया होगा, कॉर्पोरेशन का स्टॉक लिया होगा, वो उसका ओनर है, उतने पार्ट का ओनर है। द एंटायर ओनरशिप स्टेक ऑफ अ कॉर्पोरेशन इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स नोन एज स्टॉक, ठीक है। तो उसकी जो पूरी ओनरशिप है वो डिवाइड कर देते हैं जितने शेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 1 मिलियन शेयर हैं और 1 मिलियन शेयर जो है फॉर एग्जांपल 10,000 पीपल के पास हैं, तो 10,000 जो पीपल हैं वो उसके ओनर्स, ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन इज नोन एज, अगर आप सारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स की आप वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू क्या होगी, वो उसकी कॉर्पोरेशन की इक्विटी होगी। इक्विटी क्या होती है, आपने वो अकाउंटिंग में पढ़ा था, इक्विटी क्या होती है, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। इट्स सेम लाइक कैपिटल, ठीक है। सिंगल ओनर होता है तो हम कैपिटल कहते हैं, पार्टनरशिप होती है तो हम कैपिटल कहते हैं। जब उसके अनलिमिटेड पार्टनर्स हो जाते हैं या ज़्यादा पार्टनर्स हो जाते हैं, कॉर्पोरेशन होती है, तो उसको हम इक्विटी कहते हैं। So going on, ownership of a corporation, an owner of a share of stock in the corporation is known as, उसके आप शेयर होल्डर भी कह सकते हैं कि उसका शेयर है बिजनेस के अंदर, स्टॉक होल्डर भी कह सकते हैं क्योंकि आप शेयर को स्टॉक कह रहे हैं, और इक्विटी होल्डर भी कह सकते हैं क्योंकि वो शेयर्स मिलके इक्विटी बनाते हैं, तो उसको इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर और स्टॉक होल्डर सब कह सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड पेमेंट। और डिविडेंड पेमेंट क्या होती है, ये भी आपने अकाउंटिंग में पढ़ा था कि डिविडेंड क्या होता है कि एक कंपनी काम कर रही है, उसको प्रॉफिट्स हुए हैं, तो वो अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड करती है अपने ओनर्स के अंदर। अगर वो एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में तो सब पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। अब अगर वो कॉर्पोरेशन है, उसके नंबर ऑफ ओनर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं और उसको अनाउंस करते हैं, तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं, जो वो प्रॉफिट उनको मिलता है। तो डिविडेंड पे ये इंटाइटल्ड होते हैं, वट एवर दे विल अर्न, द फर्म, द कॉर्पोरेशंस विल अर्न, सो सम पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इनटू शेयर होल्डर्स। तो इनके पास लीगल इंटाइटलमेंट होती है कि इनको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाए, यानी डिविडेंड पे किया जाए। यूजुअली रिसीव अ शेयर ऑफ द डिविडेंड पेमेंट्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्टॉक दे ओन। सो उसको वैसे ही प्रोपोर्शनली
उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जितने उसके पास शेयर्स होंगे उतना उसको डिविडेंड मिलेगा, पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड होता है, ठीक है। नो लिमिटेशन ऑन हु कैन ओन इट्स स्टॉक, यानी ये नहीं होता कि भाई ये जो स्टॉक जो है इसका ओनर जो है भाई उसने अगर बीए किया हुआ होगा तो वो ले सकता है, या जो भाई फलां कास्ट का है तो वो ले सकता है, या फलां रिलीजन का है तो वो ले सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन, एनी वन कैन बाय द स्टॉक। सो वो स्टॉक ओन कर सकता है, वो जाए और परचेज कर ले स्टॉक को, तो वो ही विल बी द ओनर ऑफ दैट कॉर्पोरेशन, उतने पार्ट का जितना उसने स्टॉक खरीदा होगा, ठीक है। नाउ विल सी हियर, जो मैं बात कर रहा था आपको, वी सी द 4 टाइप्स ऑफ फर्म्स। यूएस के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, तो आप अगर देखें तो ये जो आपका पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, दिस वन, ये पाई चार्ट बना हुआ है, ये फुल 100% को शो कर रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बिजनेसेस हैं यूएस के अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो 71.8% जो बिजनेसेस हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के हैं, टोटल बिजनेसेस को अगर हम 100% लें तो। और कॉरपोरेशंस के पास 17.8% है, और पार्टनरशिप्स के पास 3.6% है, और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के पास 6.7% है। यानी सबसे ज़्यादा सोल प्रोप्राइटरशिप के पास जो बिजनेसेस हैं वो हैं, यानी सिंगल ओनर्स यूएस के अंदर। जबकि अब अगर आप देखें ये परसेंटेजेस ऑफ द बिजनेसेस है, और परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू अगर कहें कि जितना वो अर्न करते हैं, कितना अर्न किया उन्होंने, उसको अगर हम कहें कि 100% अगर वो अर्न करते हैं तो उसमें कितना शेयर जो है कॉर्पोरेशंस का है। आप देखें 17.8% ऑफ द कॉर्पोरेशंस विल टेक रेवेन्यू ऑफ 84.9%, इट्स अ बिग चंक इन द रेवेन्यूज। उसके बाद जो सेकंड वन है आप देखें इसमें वो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, जो 6.7% ओन करते हैं बिजनेसेस का, तो उनका जो रेवेन्यू है 7.1% है। और थर्ड पे आपका पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में आप देखें, पार्टनरशिप हालांकि ओन कर रहे थे 3.6%, लेकिन वो रेवेन्यू में शेयर ले रहे हैं 5% का, ठीक है। और सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि 71.8% बिजनेसेस सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, दे आर गेटिंग जस्ट रेवेन्यू 3.1%। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इकोनॉमी को कौन ड्राइव कर रहा है, कैश कहाँ, कौन सबसे ज़्यादा, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रही है, कॉरपोरेशंस। सो कॉरपोरेशंस को एज है, ये एडवांटेजेस है, बिकॉज ये इकोनॉमिक साइकिल को चलाने में हेल्प करती है, राइट जी। सो नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉरपोरेशंस, बिकॉज हमने कहा कॉरपोरेशन बहुत अच्छी हैं, बहुत रेवेन्यू अर्न कर रही हैं यूएस के अंदर, बाकी मुल्कों में भी ऐसा ही है। तो इसमें कुछ ख़ास चीज़ है जो बाकियों में नहीं है कॉरपोरेशंस के अंदर, तो इसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस होती हैं कॉरपोरेट एंटिटीज़ में, यानी कॉरपोरेशंस के ऊपर। तो कॉरपोरेशन के प्रॉफिट्स जो होते हैं सब्जेक्ट टू टैक्सेशन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स टैक्स ऑब्लिगेशन। अब आपने कहा था कि कॉरपोरेशन क्या होगी, एक आर्टिफिशियल बीइंग है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एक पर्सन है, ठीक है, लाइक अ हाइपोथेटिकल पर्सन। अब बिजनेस जो अर्न कर रहा है वो फिर उस पर पे भी तो करेगा, इतने वो अगर उसके ऊपर बेनिफिट्स ले रहा है तो वो उसके ऊपर पे भी करेगा, तो उसको टैक्स पड़ेगा। उसको हम कहते हैं, जो कॉरपोरेशंस जो टैक्स पे करती हैं उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। तो वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करेंगे। अब जो वो टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया, वो प्रॉफिट अगर उन्होंने डिविडेंड्स दिए उसको शेयर होल्डर्स को, तो वो शेयर होल्डर्स की इनकम होगी, तो उसके ऊपर वट एवर दे आर गेटिंग, तो वो शेयर होल्डर्स जो है वो क्या करेंगे, वो भी टैक्स पे करेंगे अपनी इनकम के ऊपर, जो वो उनका एक सोर्स हो गया ना इनकम का। तो जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं उन सब पे टैक्स पड़ता है, तो वो इनका इनकम का एक सोर्स है, तो उसके ऊपर उनको इनकम टैक्स पड़ता है। तो इन दिस वे, तो शेयर होल्डर्स बिकॉज वही ओनर्स हैं कॉर्पोरेशन के, तो शेयर होल्डर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन पे टैक्सेस ट्वाइस, एक कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं और फिर वो इनकम टैक्स पे करते हैं। द कॉर्पोरेशन पेज tax on its profits first, that is the corporate tax. When remitting profits are remaining profits, जो profits बच जाएंगे after corporate tax pay करने के बाद, are distributed to the shareholders. The shareholders pay their own personal income tax on that income. तो दो तरह से आप
2 दफ़ा इसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। तो ये एक इम्प्लीकेशन है जो बाकी 3 टाइप्स ऑफ द कंपनी से थोड़ी डिफरेंट है, राइट जी। इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका में 2 तरह की कॉरपोरेशंस हैं जिनको लीगली तहफ़ुज़ है, यानी उनको लीगल प्रोटेक्शन है। एक वो कहते हैं एस कॉरपोरेशन, जिन पे सिंगल टैक्स होता है, यानी डबल टैक्सेशन नहीं होती। एस कॉरपोरेशन, एस आप समझ लें कि सिंगल टैक्स जिनके ऊपर पड़ेगा वो एस कॉरपोरेशन होंगी। सो फर्म्स प्रॉफिट लॉसेस आर नॉट सब्जेक्ट टू द कॉर्पोरेट टैक्सेस। ये कॉरपोरेशंस कंपैरेटिवली छोटी होती हैं और इनके ओनर्स भी कम होते हैं। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो इनके प्रॉफिट या लॉसेस के ऊपर उनको कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पड़ता। अब लॉसेस क्यों यहाँ पे लिखे, इन केस वहाँ लॉस होता है तो फिर वो टैक्स वाले उनको टैक्स डिपार्टमेंट वाले उनको टैक्स वापस करते हैं जो उनका लॉस होता है उसके बेस के ऊपर। तो ये टैक्सेशन के अंदर आता है। व्हेन यू विल स्टडी द टैक्सेशन कोर्स यू विल सी देयर इंस्टेड प्रॉफिट लॉसेस आर एलोकेटेड डायरेक्टली टू शेयर होल्डर्स बेस्ड ऑन देयर ओनरशिप शेयर। ठीक है, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट वो शेयर होल्डर्स से ही वो टैक्स लेते हैं। शेयर होल्डर्स मस्ट इंक्लूड दीज प्रॉफिट्स एज इनकम ऑन देयर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न्स। जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि उसी प्रॉफिट को वो डिवाइड कर देंगे शेयर होल्डर्स के ऊपर और वो उसी के ऊपर एक टैक्स पड़ेगा जो कि उनका पर्सनल इनकम टैक्स होगा। इवन इफ नो मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम, तो अगर डिविडेंड पे नहीं भी किया तब भी शेयर होल्डर्स अपनी टैक्स रिटर्न्स सबमिट कराएंगे टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई एस कॉर्पोरेशंस। यानी कॉर्पोरेशंस के अंदर फर्दर वी आर गोइंग डीप दैट एक एस कॉर्पोरेशन है जिनमें सिंगल टैक्स होता है। एंड अदर वन इज अ सी कॉर्पोरेशन। सी कॉर्पोरेशन जो है वो फुल फ्लेज कॉर्पोरेशंस हैं जिन पे डबल टैक्सेशन होती है। ठीक है, मोस्ट कॉर्पोरेशन आर सी कॉर्पोरेशंस। मैंने जैसे कहा कि एस कॉर्पोरेशंस बाकी काफ़ी कम है और ज़्यादातर जो कॉर्पोरेशंस होती हैं वो सी कॉर्पोरेशन, यू नेम इट, कितनी भी बड़ी कंपनी है वो सारी सी कॉर्पोरेशंस हैं। सो दे मस्ट पे कॉर्पोरेट टैक्सेस ऑन इट्स प्रॉफिट। तो इन पे डबल टैक्सेशन होगी जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा। सिंस इंडिविजुअल्स मस्ट पे पर्सनल इनकम टैक्सेस ऑन दीज डिविडेंड्स, शेयर होल्डर्स इन सी कॉर्पोरेशन इफेक्टिवली मस्ट पे टैक्सेस ट्वाइस। तो वो दो दफ़ा टैक्स पे करेंगे, एक कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरा उनका पर्सनल इनकम टैक्स। तो अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम कंपेयर करें तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी, नंबर ऑफ ओनर्स कितने होंगे, लायबिलिटी क्या होगी फर्म के डेट्स की, और ओनर्स मैनेज करेंगे फर्म को या नहीं करेंगे, और ओनरशिप चेंज जो है वो डिसॉल्व करेगी फर्म को या नहीं करेगी, और टैक्सेशन किस तरह से होगी। तो आप अगर इसको देखें ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यहाँ टाइप्स ऑफ द कंपनीज हैं, टाइप्स ऑफ द फर्म्स है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप में नंबर ऑफ ओनर 1 होता है। लायबिलिटी फॉर फर्म्स डेट यस होती है, यानी ये मिक्स होती है, बिजनेस और ओनर मिक्स होता है जैसे हमने पढ़ा। ये जस्ट एक ओवरव्यू है वट एवर वी हैव स्टडीड अप टू नाउ। ओनर्स मैनेज द फर्म, यस, ओनर ही मैनेज कर रहा होता है। ओनरशिप चेंज डिसॉल्व द फर्म, यस, जब सोल प्रोप्राइटरशिप की डेथ हो जाएगी या किसी वजह से वो बिजनेस छोड़ देगा तो वो फर्म भी बंद हो जाएगी। ठीक है, और टैक्सेशन इसके ऊपर बिजनेस पे सेपरेट नहीं होगी बल्कि उसके पर्सनल जो भी उसका प्रॉफिट्स होंगे उसके पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर उसको टैक्स पे करना होगा। पार्टनरशिप के अंदर नंबर ऑफ ओनर्स की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, लेकिन लायबिलिटी हर ओनर के ऊपर, हर पार्टनर के ऊपर आएगी और ओनर ही मैनेज करेंगे फर्म को, और ओनरशिप चेंज हो जाती है या डिसॉल्व हो जाती है अगर पार्टनरशिप में से कोई पार्टनर मिसिंग हो या छोड़ दे या उसकी डेथ हो जाए। और टैक्सेशन इसमें भी पर्सनल होती है, हर पार्टनर अपना पर्सनल इनकम टैक्स पे करेगा। और लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा, ये देखिए लिमिटेड पार्टनरशिप हमने पढ़ी थी ना, लिमिटेड पार्टनर्स। तो अब देखें नंबर ऑफ ओनर्स क्या है, एटलीस्ट 1 जनरल पार्टनर, एक जनरल पार्टनर जरूर होगा उसके अंदर लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर। नो लिमिट ऑन द लिमिटेड पार्टनर्स। तो लिमिटेड पार्टनर्स क्या होंगे, वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे होंगे लेकिन उनका मैनेजमेंट अथॉरिटी कोई नहीं होगी, वो अंदर बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसमें लायबिलिटी फ्रॉम फर्म्स डेट्स जो है वो जनरल पार्टनर के ऊपर आएगी और जो लिमिटेड पार्टनर है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, और जो मैनेज कर रहा होगा वो भी जनरल पार्टनर मैनेज कर रहा होगा और जो लिमिटेड पार्टनर है वो मैनेज नहीं कर रहा होगा। और ओनरशिप चेंज होने से अगर जनरल पार्टनर मिनिमम हमने कहा 1 होगा, अगर जनरल पार्टनर्स में से कोई पार्टनर चेंज होता है तो वो बिल्कुल वैसे पार्टनरशिप की तरह इसका जो है ओनरशिप या तो चेंज हो जाएगी और चेंज होने से डिसॉल्व हो जाएगी कंपनी।
और अगर लिमिटेड पार्टनर्स चेंज होते हैं या उसकी डेथ हो जाती है तो उससे कंपनी को, पार्टनरशिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें भी टैक्सेशन पर्सनल होगी, यानी जो लिमिटेड पार्टनर्स होंगे वो अपना टैक्स पे करेंगे, वट एवर द पार्ट दे आर गेटिंग फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, और जनरल पार्टनर्स अपना पार्ट पे करेंगे। और इसी तरह से लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर भी नंबर ऑफ ओनर्स अनलिमिटेड होते हैं, और लाइबिलिटी इसमें फर्म्स की डेट्स की नहीं होती हैं ओनर्स के ऊपर, ठीक है, ओनर्स के ऊपर कोई नहीं होती। और ओनर्स मैनेज करते हैं फर्म को, जी करते हैं। ओनर्स चेंज डिसॉल्व कर देती है फर्म को तो नहीं करती, लेकिन उन्होंने ये स्टार दिया है, ये देखें ये स्टार में क्या है। हाउएवर मोस्ट एलएलसी रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ अदर मेंबर्स टू ट्रांसफर योर ओनरशिप। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये एक आप कह लें कि फैमिली कंपनी होती है, लेकिन उन्होंने इसको रजिस्टर कराया होता है। तो इसके अंदर विद इन फैमिली या विद इन क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो कंपनी बनी है, तो उन्हीं में से कोई बाय करेगा। अगर कोई उसमें से पार्टनर जो है, ओनर जो है कोई, उसकी डेथ हो जाती है या वो छोड़ देता है अपना पार्ट, तो इसमें भी टैक्सेशन जो है वो पर्सनल होती है, ठीक है। जो एस कॉर्पोरेशन है, हमने पढ़ा कॉर्पोरेशन को दो टाइप्स के अंदर। एस कॉर्पोरेशन क्या थी, जिसपे सिंगल टैक्स होता है। एस कॉर्पोरेशन क्या होगी, इसमें नंबर ऑफ ओनर्स मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, यानी आपके शेयर्स 100 ओनर्स के पास होंगे, 100 से ज़्यादा लोगों के पास नहीं होंगे। सो आप यूं समझ लें कि एलएलसी और एस कॉर्पोरेशन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये लीगल एंटिटी है, ये लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो। तो इसमें मैक्सिमम ओनर्स 100 होंगे और लायबिलिटी जो है फर्म्स की वो नहीं होगी ओनर्स के ऊपर। और ओनर्स मैनेज लीगली तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं करते कॉर्पोरेशन के अंदर, बल्कि इनका सेटअप डिफरेंट होता है, हम आगे देखेंगे इसको। और ओनरशिप चेंज होने से फर्म डिसॉल्व नहीं होती, और इसमें भी पर्सनल टैक्स होता है, यानी सिंगल टैक्सेशन होती है। और सी कॉर्पोरेशन जो है, जो सबसे ज़्यादा कंपनीज हैं, कोका कोला है और गूगल है और IBM है और यू नेम इट, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी सी कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है। और इसको हम देख चुके हैं, इसमें भी लीगली अलाउड होता है कि ओनर्स में से कोई एक ओनर जो है वो मैनेज कर सकता है, यानी CEO जो है कैन बी वन ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है, हो सकता है, बट नॉर्मली ऐसा प्रैक्टिस नहीं होता, ठीक है। ओनरशिप भी चेंज नहीं होती और इसमें डबल टैक्सेशन होती है, यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस। सो दिस इज हाउ अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ फर्म्स वी हैव स्टडीड। So hope you have understood all the concepts. Thank you. We'll see in the next unit.